السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دوے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں، اس درس میں۔ آج کا ہمارا جو ہے ڈے نمبر 14 ہے اور 14واں دن ہے، اور الحمدللہ اس سے پہلے 13 دن ہم نے مکمل کیے جس میں بہت سارے انبیاء اکرام کا ہم نے تذکرہ دیکھا۔ پچھلے کل کے درس میں ہم نے حضرت اسماعیل، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے دیکھا تھا، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے جو حضرت سارہ سے آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک طویل عمر کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں ایک نرینہ اولاد عطا کی جن کا نام اسحاق رکھا گیا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب کی دونوں کی بشارت دی۔ اور حضرت اسحاق، اہل علم نے کہا ہے، اہل تاریخ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت اسحاق یہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم کہہ کر کے خطاب کیا، کہا کہ حضرت یوسف، حضرت بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے، یعنی شریف بن شریف بن شریف، یعنی کریم یعنی باعزت شریف، اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور اس طرح سے 4 نسلیں یہ انبیاء اکرام رہی ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے تعلق سے حضرت یوسف کے قصے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3382 ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو حضرت اسحاق کی بشارت دی تھی، اور حضرت اسحاق اور یعقوب کا دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے حضرت اسحاق کا تذکرہ رکھوں گا، اور اسی تذکرے میں حضرت یعقوب کی بھی آیتیں، یعنی وہ آیتیں جس میں حضرت یعقوب کا بھی نام ہے اسحاق کے ساتھ، ان آیتوں کو بھی میں ذکر کر دوں گا ابھی، اور پھر آخر میں ہم لوگ صرف حضرت یعقوب کا جو ہے مختصر سا تعارف دیکھ لیں گے، کیونکہ پھر سورہ یوسف میں بھی انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی جو ہے حضرت یعقوب کا تذکرہ آئے گا جو حضرت یوسف کے والد تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 69 سے 76 کے بیچ میں فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ وہی جو آیت میں نے حضرت ابراہیم کے تذکرے میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے فرشتوں کو حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری دے کر کے بھیجا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا، اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور بغیر تاخیر کے انہوں نے جو ہے ایک بچڑا، بنا ہوا بچڑا فرشتوں کے لیے لا کر کے پیش کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں کھانے کی طرف فرشتے، تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم اپنے آپ کے رب کی جانب سے بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، چونکہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ان کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی حضرت سارہ یعنی حضرت ابراہیم کی بیوی، وہ ہنس پڑی، وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعنی بیٹے کی بھی بشارت دی، ساتھ ہی ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخ ان هذا لشیء عجیب۔ حضرت سارہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہائے میری کم بختی کہ میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بھی بوڑھیا ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور یقیناً یہ بات تو بڑی عجیب ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی قدرت پر تم تعجب کرتی ہو، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، برکتیں نازل ہو، رحمتیں نازل ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین
العالمین حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ ذاریات میں بھی نقل فرمایا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 24 سے 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھے ابراہیم کے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی ہے، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس پر داخل ہوئے تو سلام کیا۔ قال سلام قوم منکرون، اور ابراہیم نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں آپ لوگ۔ فراغ الی علی فجاء بعجل سمین، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر گئے، گھر والوں کے لیے آپ نے جو ہے گھر میں اپنے آپ نے بچڑا ذبح کیا، بھنا ہوا بچڑا فرشتوں کے لیے لا کر کے پیش کیا۔ فقربوا الیہم قال الا تاکلون، اور انہیں ان کے پاس رکھا اس بنے ہوئے بچڑے کو اور کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ فاوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام حلیم، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرو نہیں۔ حضرت ابراہیم ڈرنے لگے جب وہ نہیں کھا رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا آپ ڈرو نہیں، جو ہے ہم آپ کو جو ہے ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، اور حضرت ابراہیم کی بیوی جو حضرت سارہ ادھر ہی موجود تھی، انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور میں بڑھیا ہو چکی ہوں اور میں بانجھ ہوں، کیسے مجھے اولاد ہو سکتی ہے؟ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، فرشتوں نے کہا کہ تمہارا رب ایسے ہی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح فرمایا ہے، اور بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اب یہاں سے کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ کیا، ان کی نبوت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اسحاق دیا، اسحاق کو یعقوب دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو نبوت عطا کی۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کچھ آیتوں میں، وہ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ صافات آیت نمبر 112 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی، ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی، نیک لوگوں میں سے وہ تھے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکت نازل فرمائی، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک ہوئے اور کچھ لوگ اپنے اوپر صریح ظلم کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت سورہ انعام آیت نمبر 84 میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَاهُ، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہم نے صراط مستقیم دکھائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 49 میں فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے جو علیحدگی اختیار کر لی اور جو ہے چھوڑ دیا انہیں، تو ہم نے ان کو جو ہے اسحاق عطا کیا اور یعقوب عطا کیا، اور ہم نے ان دونوں کو نبوت عطا کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 میں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، یہ حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اس اللہ کے لیے سب تعریف ہے، اس اللہ رب العالمین کے لیے سب تعریفیں ہیں، شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، یعنی اسماعیل اور اسحاق بڑھاپے میں عطا فرمائے، بلا شبہ میرا رب دعا سنتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح حضرت سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے اور یعقوب عطا کیے، یعنی اسحاق اور یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دیے، اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو اللہ رب العالمین نے رکھ دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نبی اس کے بعد آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں آئے ہیں، اور ہم نے انہیں اجر عطا کیا، اور دنیا میں بھی ہم نے انہیں اجر عطا کیا، اور آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوں گے یہ لوگ۔ حضرت اسحاق جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی جہاں پر حضرت اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ تھا۔ اب حضرت یعقوب کے تذکرے میں آپ کے سامنے یہ آیتیں نہیں دہراؤں گا، آپ اتنا سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا کیا، پھر اس کے 13 سال بعد تقریباً جیسے علی اقوال العلماء جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے حضرت سارہ سے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم نے اپنا منصب دے دیا، اپنی جگہ دے دی، اور حضرت اسحاق کی شادی رفقہ بنت بنوئیل بن ناحور سے ہوئی، اور ان سے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔
हजरत इसहाक के दो जुड़वा बेटे पैदा हुए, एक का नाम ईस था और एक का नाम याकूब, और हजरत याकूब ही का नाम इसराइल भी था, है ना, बने इसराइल इसी से मशहूर है। और हजरत याकूब का बाद अहले इल्म ने कहा कि ये उनका लक़ब था इसराइल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इसहाक के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फायज किया, और हजरत याकूब के मशहूर बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत अता की, वह हजरत याकूब ही के बेटे थे। लिहाजा हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे की हालत में औलाद पाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जरिए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शक्ल में, और फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जो है पैदा किया। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कि आप देखें कि नबूवत का आप सिलसिला देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि एक सिलसिला जो शुरू हुआ हजरत इसहाक से, वो कहाँ तक चलता रहा, हजरत ईसा तक। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इसहाक को याकूब अता किए, फिर याकूब के बाद यूसुफ अता किए, और उसके बाद जो नबूवत का सिलसिला ये चला बनी इसराइल में, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक गया। और सिर्फ एक नबी जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से थे, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो नबी आखिरुज़ ज़मा है। और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्फ, मंजिलत, नबूवत और अफदलियत अता की तमाम अंबिया इकराम पर। लिहाजा आप देखें कि तमाम के तमाम अंबिया इकराम इसी में आए हैं। उसके बाद जो बनी इसराइल में सिलसिला शुरू हुआ है हजरत याकूब से अंबिया इकराम का, तो वो जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक उसी तरह जारी रहा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इसहाक की औलाद से कसीर अंबिया इकराम पैदा किए, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। ये था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो मैंने आपके सामने रखा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हजरत इसहाक के तज़किरे में जो आयतें मैं आपके सामने पेश करूंगा वो इसहाक और याकूब दोनों के लिए है, क्योंकि एक बहुत मुख्तसर सा तज़किरा है इनका कुरान मजीद में। लिहाजा इन दोनों के लिए ये आयतें हैं। तो मैंने हजरत इसहाक का तज़किरा आपके सामने रखा। अभी मुख्तसरन हजरत याकूब का सिर्फ इब्तिदाई तारुफ करवाऊंगा, और फिर हम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत अता की, और उनके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत अता की। हजरत इसहाक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो जुड़वा औलाद अता की थी, एक का नाम ईस था, दूसरे का नाम याकूब था। याकूब ये इन्हीं का एक लक़ब या इनका नाम इसराइल भी था, जिससे बनो इसराइल मशहूर हुए बाद में। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे कि मैंने आपके सामने रखा कि हजरत इसहाक की औलाद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया इकराम को जारी कर दिया, हजरत इसहाक, याकूब, यूसुफ और पूरा ईसा अलैहिस्सलाम तक। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबऊस किया। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम या हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद थी, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत से भी सरफराज किया था। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ही खानदान की दो खवातीन से निकाह किया था, एक का नाम लैया था और दूसरे का नाम राहिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बीवी से 10 औलादें अता की, एक बीवी से 2 औलादें अता की। एक बीवी से जो 10 औलादें अता की वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीगर भाई थे, और एक बीवी से जो 2 औलादें हुई जिसमें हजरत यूसुफ और बिन्यामीन थे, ये दोनों सगे भाई थे, और बाकी के दूसरे जो 11 भाई थे वो दूसरी माँ से थे। लिहाजा ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के टोटल 10 भाई दूसरी माँ से थे, और हजरत यूसुफ और बिन्यामीन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से थे। लिहाजा ये मुख्तसरन हजरत याकूब का इब्तिदाई तारुफ हुआ। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ बच्चे की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, और यहाँ से हजरत यूसुफ का इंशाअल्लाह हम लोग तज़किरा शुरू करेंगे, और फिर उसी में कुछ तज़किरा हजरत याकूब का भी इंशाअल्लाह हो जाएगा। देखिए कुरान मजीद में हजरत यूसुफ आप देखें कुरान मजीद में जो अभी अंबिया इकराम के मैंने तज़किरे आपके सामने रखे, वो मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिखेर करके रखा है। टुकड़े टुकड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई सूरतों में अंबिया इकराम का तज़किरा किया। जैसे मैंने हजरत नूह का आपके सामने रखा, कई सूरतों में हजरत नूह का तज़किरा गुजरा। इसी तरह हजरत आदम का तज़किरा कई सूरतों में गुजरा, सूरह बकरा में गुजरा, सूरह आराफ में गुजरा। इसी तरह कई और सूरतों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा गुजरा। तो ये अंबिया इकराम के जो तज़किरे मैंने आपके सामने रखे, कई सूरतों में इसको अल्लाह ताला ने बयान किया। कई सूरह नमल की मैंने हवाले दिए, कई शूरा के हवाले दिए, कई शुअरा के हवाले दिए, कई जो है मैंने आपके सामने सूरतुल आराफ के हवाले दिए। तो ये मुख्तलिफ सूरतों में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम का तज़किरा रखा था, ये मैंने आपके सामने बयान किया। लेकिन आप देखें हजरत यूसुफ का जो तज़किरा है, अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में सिर्फ और सिर्फ
सूरह यूसुफ ही एक ऐसी जगह है जहां पर मुकम्मल हजरत यूसुफ का तज़किरा अल्लाह ताला ने बयान किया, और कहीं भी आपको तज़किरा नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा लेकिन उनकी जिंदगी का छोटे से छोटा वाकया भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक निशानी है, कुरान मजीद की हक़ानियत की एक दलील है कि कुरान मजीद ने जिन वाकयात को मुकर्रर जिक्र किया है, थोड़े थोड़े वाकयात जहां पर जिक्र किए अल्लाह ताला ने, उसको भी इंसान पढ़ करके उकताता नहीं है। आप अभी देखें, आपने इतने अंबिया इकराम का तज़किरा सुना, मैंने अलग अलग सूरतों से आपको तज़किरा पढ़ करके सुनाया, आपको ऐसा लगा रिपीटेशन हो रहा है, बार बार एक ही बात रिवाइज हो रही है? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कई जगहों पर एक बात जहां अनमुकम्मल थी वहां पर लेके जाकर मुकम्मल किया, यानी मुख्तलिफ वाकयात को, मुख्तलिफ टुकड़ों को आप जोड़ेंगे तो पूरा एक वाकया बनेगा, जैसे मैंने आपके सामने तफसील से रखा। लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानी है कि कुरान मजीद के वो वाक़यात जो मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरे पड़े हैं उसको भी इंसान पढ़ करके उकताता नहीं है, और वो वाक़यात जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही जगह बयान किया है जैसे हजरत यूसुफ का, उसको भी पढ़ करके इंसान उकताता नहीं है। ये कुरान मजीद की हक़ानियत की एक दलील है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरे वाक़े को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूसुफ में जिक्र किया है। और आपको पता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस कहा, यानी सबसे बेहतरीन किस्सा। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी इबरतें, इतनी नसीहतें हैं ना कि हम शुमार नहीं कर सकते, हम उसको गिन नहीं सकते। हमारी जितनी वुसाअत होगी हम आपके सामने रख देंगे इबरतें और नसीहतें, लेकिन आप गौर करेंगे ना तो आप ढेरों इसमें से निकाल सकते हैं। चाहे आप दीनी लिहाज से देखें, दुनियावी लिहाज से देखें, तौहीद व फिक़्ह के लिहाज से देखें, सीरत व सवानिह के लिहाज से देखें, ख्वाबों की ताबीर के लिहाज से देखे, या सियासत और हुकूमत के लिहाज से देखे, या इंसानी नफ्सियात के हिसाब से देखे, या खुशहाल जिंदगी यानी जिंदगी में खुशहाली लाने के एतबार से देखे, हर एतबार से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तज़किरे में आपको नसीहत, इबरत मिल ही जाएगी। ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें समेट दी है। इसमें सियासत और हुकूमत भी है, इसमें फ़िक़्ह व फतावा भी है, इसमें जो है ख्वाबों की ताबीर भी है, इसमें जो है तौहीद व फ़िक़्ह भी है, इसमें जो है सीरत और सवानिह भी है, इसमें जो है समझिए एक एतबार से पूरा का पूरा इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किस्से में, इस वाक़े में बयान कर दिया। इसी तरह खुशहाल जिंदगी के उसूल भी इसमें है। तो आइए, क्यों ना इतना बेहतरीन वाक़या है और जिसको अल्लाह ताला ने अहसनुल क़सस करार दिया है, क्यों ना इस वाक़े को हम लोग शुरू करें। सूरह यूसुफ की इब्तिदा ही से इस वाक़े की इब्तिदा हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 1 से 3 के बीच में फरमाया, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये रोशन किताब की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इस कुरान मजीद को अरबी ज़बान में नाज़िल किया ताकि आप इसको समझ सके। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा अवहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और हम आपके सामने एक बेहतरीन किस्सा बयान कर रहे हैं, बेहतरीन वाक़या बयान कर रहे हैं, इस वजह से कि हमने इसको आपकी जानिब वही के जरिए से नाजिल किया है और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ का तज़किरा भी यहाँ से शुरू होगा। इसकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की इब्तिदा होती है ख्वाब से, आपकी नबूवत की इब्तिदा होती है ख्वाब से। जैसे कि मैंने आपको बताया, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब थे, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ थे। आपको पता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो शर्फ हासिल है जो नबी के किसी भी नबी को हासिल नहीं है। वो क्या कि इनकी 4 पुश्तें नबी थी, यानी हजरत यूसुफ नबी, हजरत यूसुफ के वालिद हजरत याकूब नबी, हजरत याकूब के वालिद हजरत इसहाक नबी, हजरत इसहाक के वालिद हजरत इब्राहिम भी नबी। हजरत यूसुफ को जो शर्फ हासिल है वो किसी भी नबी को हासिल नहीं है। आपकी 4 पुश्तें, आबा व अजदाद से आपकी 4 पुश्तें नबी है, यानी आप भी नबी है, आपके वालिद याकूब भी नबी है, उनके वालिद इसहाक भी नबी है और उनके वालिद इब्राहिम भी नबी है। ऐसा किसी भी नबी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनकी 4 पुश्तें नबी हो। लिहाजा ये खुसूसी शर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल है। लिहाजा हजरत यूसुफ के नबूवत की इब्तिदा होती है ख्वाब से। वो छोटे हैं बहुत ही, और अपने बचपने ही में चूंकि बाप वालिद नबी थे, लिहाजा उन्होंने एक ख्वाब देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 4 से 6 के बीच में फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या बती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था कि उन्होंने ये देखा कि 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। कहते हैं हजरत यूसुफ ने अपने वालिद से जिक्र किया कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11
सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ के वालिद ने कहा हजरत याकूब ने, क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका फयकीदू लका कैदा इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। हजरत याकूब ने अपने बेटे हजरत यूसुफ से कहा कि बेटा देखो ये ख्वाब जो तुमने देखा है ना, हजरत यूसुफ ने बचपन में ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने वालिद से उसका जिक्र किया, क्योंकि वालिद बच्चे के साथ मेहरबान होता है, शफीक होता है, और बच्चे ने अपने वालिद की मोहब्बत देखी होती है, इसीलिए उन्होंने अपने वालिद के सामने उसका तज़किरा किया। हजरत यूसुफ के वालिद ने हजरत याकूब ने कहा कि बेटा देखो तुम अपने दूसरे जो भाई है ना उनके सामने इस ख्वाब को बयान नहीं करना, जैसे कि दूसरी माँ से उनके 10 भाई थे और एक बिन्यामीन उनका खुद अपना भाई था। लिहाजा हजरत याकूब ने कहा कि अपने दूसरे भाइयों से तुम जो है इस ख्वाब को बयान न करना, इसलिए कि वो आपसे हसद करेंगे, और जो है शैतान इंसान का ये खुला हुआ दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उन्हें बहका दे। लिहाजा हजरत याकूब ने उस ख्वाब का तज़किरा करने से मना फरमाया। देखिए एक बात इससे हमें ये पता चलती है ना कि इंसानों को, मुझे और आपको चाहिए कि जो ख्वाब हम देखते हैं उसके तज़किरे हम लोगों में करते ना फिरे, वरना जो ख्वाब हम देखते हैं अगर वो अच्छा ख्वाब होता है तो उससे लोगों को हसद पैदा होता है, जलन पैदा होती है, और इससे हमारे मामला बिगड़ने का, खराब होने का खदशा होता है। लिहाजा इसको लोगों के सामने इस तरह से बयान नहीं करनी चाहिए। जो खैरख्वाह हो, जो उसके लिए कुछ कर सकता हो, ऐसे ही शख्स के सामने बयान करनी चाहिए। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से बयान किया। वालिद ने कहा कि बेटा इस ख्वाब को किसी से बयान न करना, अपने भाइयों से भी बयान न करना। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 6 में फरमाया, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक़ व इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। कि इसी तरह तुझे तेरा परवरदिगार जो है बरगुज़िदा करेगा और तुझे मामला फहमी अता करेगा, ख्वाबों की ताबीर अता करेगा, और आगे फरमाया कि तू अपनी नेमतें तुझ पर भरपूर, तुझे अपनी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा, और याकूब के घर वालों को भी, जैसे यकीनन तेरा रब, जैसे उसने जो है तुझसे पहले तेरे आबा व अजदाद यानी इब्राहीम इसहाक को भरपूर नेमतें अता की और उन्हें नेमत दी। तेरा रब बहुत बड़े इल्म वाला और ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया कि अनकरीब अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत अता करेगा और तावीलुल अहादीस, इससे अहले इल्म ने ये कहा कि मामला फहमी अता करेगा, यानी किसी भी मामले को समझने की ताकत। लेकिन असल जो यहाँ पर मुराद है वो ख्वाबों की ताबीर मुराद है, यानी ख्वाबों की ताबीर का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता करेगा। जो ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे की थी वो इंशाल्लाह आगे के तज़किरे में आएगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इनामात के दरवाजे खोल दिए, और जो है हजरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत अता की। देखिए बाद अहले इल्म ने ये बात लिखी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ के साथ साथ उनके दीगर भाइयों में भी नबूवत दी थी, यानी वो जो 10 भाई थे ना उनमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत दी थी। बाद अहले इल्म ने इस बात को लिखा है, और उन्होंने दलील कहाँ से ली है? कुरान मजीद सूरह आल इमरान की आयत नंबर 84 से उन्होंने दलील पकड़ी, जो है 84 से उन्होंने दलील पकड़ी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात जिक्र की कि कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला अलैना वमा उनज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफे इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतरी हम उस पर ईमान ले आए। यानी औलाद पर जो उतरी है ना, तो इससे वल अस्बात से बाज़ अहले इल्म ने कहा कि हजरत इसहाक हजरत याकूब की दूसरी औलादों में भी जो है नबूवत अता की गई, लेकिन ये बात गलत है। सही बात ये है ना कि यहाँ पर अस्बात से मुराद बनी इसराइल है, बनी इसराइल के सारे कबीले हैं। जो इसके बाद नबूवत का सिलसिला जो शुरू हुआ हजरत ईसा तक, तो ये बनी इसराइल ही में रहा ना, तो ये मुराद है। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को हजरत याकूब की उन औलादों में से नबूवत अता नहीं की गई। इस पर ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी दलालत करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ इब्नु इसहाक इब्राहीम यूसुफ इब्नु इसहाक याकूब इब्नु इसहाक इब्नु इब्राहीम, यानी ये है करीम इब्नु करीम इब्नु करीम इब्नु करीम, शरीफ बिन शरीफ बिन शरीफ बिन शरीफ, यानी जो नबूवत का जो शर्फ, जो मंजिलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की, उसका जिक्र अल्लाह के नबी ने कहा। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीगर भाइयों का कहीं भी जिक्र नहीं है, क्योंकि अगर दीगर भाई होते तो वो भी हजरत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम ही होते ना, लेकिन उनका तज़किरा नहीं। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ के अलावा उनके किसी भी भाई का नाम लेकर के जो है उनकी नबूवत की तरफ इशारा नहीं किया है। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है, यानी इससे मुराद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है जिसमें से कई अंबिया कराम निकले।
इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तज़किरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 7 से 10 के बीच में ये बात जिक्र की। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना फ़ी यूसुफ व इख़्वतिही आयतुल लिस्साइलिन, यकीनन यूसुफ और उनके भाइयों में दरियाफ्त करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं, जानने वालों के लिए, समझ रखने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। यानी वो लोग जो इनके वाक़यात में गौर फिक्र करेंगे, इनके वाक़यात को पढ़ेंगे, इससे इबरत और नसीहतें हासिल करेंगे तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हासिल करने के लिए। इसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़ क़ाल यूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि हज़रत यूसुफ और याकूब, ये हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन, याकूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी से औलाद थे और ये 10 भाई दूसरी बीवी से थे, लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ख्वाब की वजह से और पहले से भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब को बहुत महबूब थे। हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते थे और उनके दीगर बच्चों को इससे प्रॉब्लम थी, इससे अच्छा नहीं लगता था उनको। ये कहते थे कि देखो हमारे वालिद जो है हमारे वालिद यूसुफ और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे कम मोहब्बत करते हैं, हालांकि हम जवां हैं, हम ताकतवर है, हाँ हमारे वालिद तो बड़ी गुमराही में है। यानी उनके बेटों ने ये बात कहा कि हमारे वालिद यूसुफ और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे मोहब्बत नहीं करते, हालांकि हम जो है ज्यादा बेहतर है, हम मोहब्बत के एतबार से ज्यादा मोहब्बत के काबिल है, उसके बावजूद हमारे वालिद हमसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि यूसुफ और बिन्यामीन से मोहब्बत करते हैं। अब भाइयों में जब हसद पैदा हुआ, देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब बेटों में हसद पैदा हुआ था वहां पर कत्ल हुआ। अब यहाँ पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में हसद पैदा हुआ आपस में कि मेरे वालिद, हमारे वालिद जो है यूसुफ और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे मोहब्बत नहीं करते। लिहाजा जब हसद पैदा हो गया तो अब उन लोग के अंदर शैतान दाखिल हो गया, तो ये लोग आपस में मशवरे करने लगे। अल्लाह ताला ने सूरे यूसुफ आयत नंबर 9 में फरमाया उक़्तुलू यूसुफ अव इतरहूहु अर्दन यख़लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन। यूसुफ के भाइयों ने आपस में मशवरा किया और कहा, एक ने कहा कि काम करते यूसुफ को कत्ल कर देते, यूसुफ को कत्ल कर देते। एक ने कहा कि नहीं, उसे एक ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं जो जहां पर कोई मौजूद ना हो, यानी उसे किसी नामालूम जगह पर फेंक आते हैं, यानी ऐसी जगह पर छोड़ करके आ जाते हैं कि यूसुफ को पता ही ना हो कि घर वापस कैसे आना है, और फिर उसके बाद हम अपने वालिद के चहीते बन जाएंगे। और आखिर में क्या कहा पता है, वतकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन, उसके बाद तुम नेक हो जाना, तुम एक बार गलती कर लो, एक बार जो है गुनाह कर लो और उसके बाद फिर नेक बन जाना। यानी वो भी इस बात को समझते थे कि ये गुनाह है, ये गलती है, हाँ ये गुनाह है, उसके बावजूद वो काम अंजाम देने का प्लानिंग कर रहे थे। लिहाजा उन लोगों ने कहा, मशवरा किया कि काम करते यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, या किसी ने कहा कि नहीं, उसको ना एक ऐसी नामालूम जगह पर छोड़ करके आ जाते हैं जहां से वो वापस ही ना आ पाए, और फिर हम और हमारे वालिद जो है दरमियान में कोई नहीं होगा और उसके बाद हम लोग नेक लोगों में से हो जाएंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 10 में कहा क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ा व अलक़ूहु फ़ी ग़ियाबतिल जुब्बी यल्तक़ितहु बअदु सय्यारती इन कुंतुम फ़ाइलीन। एक भाई जो उनमें से थोड़ा सा बेहतर था उसने ये कहा ला तक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल ना करो। उसने अपने दूसरे भाइयों से, जो दूसरों के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर था, उसने अपने दूसरे भाइयों से कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो, बल्कि उसे एक ऐसे अंधे कुएं में छोड़ के आ जाओ, उसकी तह में डाल करके आ जाओ जहां से वो वापस ना आ पाए, और फिर वहां पर बाज लोग जो गुजरेंगे वो उनके साथ लेकर के निकल जाएंगे वो अपने साथ, और उसको ले जाकर के कहीं बेच बाज देंगे। इस तरह से उन लोगों ने इरादा किया और उस तरह से उन लोगों ने प्लान बनाया। अब ये शख्स कौन था, ये कौन सा भाई था, इसके ताल्लुक से इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक भाई था शमऊन, वो उसने ये बात कही थी। और इमाम सुद्दी रहमहुल्लाह ने कहा कि नहीं, शमऊन नहीं बल्कि एक भाई था, यहूदा नाम था, उसने ये बात कही थी। लेकिन मोहम्मद बिन इसहाक रहमहुल्लाह जो ये बात कहते हैं कि यहाँ पर कहने वाला जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा बेटा था रुबैल, उसने ये बात कही थी कि यूसुफ को कुएं में ना डालो। बहरहाल ये इख्तिलाफ है उलमा का इस बारे में कि किसने ये बात कही थी, बल्कि जो है उसने ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने बहरहाल मना किया था इस बात से कि यूसुफ को कत्ल ना करो, बल्कि उसे एक अंधे कुएं में डाल दो ताकि जो बास लोग काफिला वहां से गुजरेगा वो उसे साथ लेकर के जाएगा। इसके बाद आयत नंबर 11 से 18 के दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र किया कि अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को मनाने लगे हजरत यूसुफ के ताल्लुक से। आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, उन लोगों ने कहा क़ालू या अबाना मा लका ला तमन्ना अला यूसुफ़ा व इन्ना लहु लनासिहुन। उन्होंने अपने वालिद से, वो लोग अपने वालिद से कहने लगे कि आप यूसुफ के ताल्लुक से हमारे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते। वो जो दूसरे बेटे थे हजरत याकूब के, वो कहने लगे कि यूसुफ के बारे में आप हम पर भरोसा क्यों नहीं करते।
करते। हाँ, चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत यूसुफ को नबूवत अता करने वाला है, एक आली मनसब अता करने वाला है, लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करते थे और ज्यादा उनका ख्याल रखते थे, लिहाजा वो उनके ताल्लुक से बहुत मोहतात थे। तो दूसरे भाइयों को ऐसा लगने लगा कि हमारे वालिद हम पर भरोसा नहीं करते, लिहाजा उन्होंने हजरत याकूब से पूछ लिया कि आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते, हम तो उसके खैरख्वाह है, क्या हम उसके क्या दुश्मन हैं। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो लोग अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ के ताल्लुक से मनाने लगे। हजरत आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 12 में फरमाया, अरसिलहु मअना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफिज़ून, कि उन लोगों ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कल हमारे साथ यूसुफ को भेजिए, हम लोग उसे साथ ले जाएंगे और साथ खेलेंगे हम लोग। आप यूसुफ को भेजते क्यों नहीं हमारे साथ खेलने के लिए, लिहाजा आप भेजिए, हम यूसुफ को साथ ले जाएंगे, वहां खेलेंगे और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। व इन्ना लहु लहाफिज़ून, उन लोगों ने कहा कि हम लोग हजरत यूसुफ की, हम लोग जो है यूसुफ की हिफाजत करने वाले हैं। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा वाकया बताता चलता हूं, आयतें मैं तिलावत नहीं करूंगा बल्कि सिर्फ आपको वाकया बयान करता चला जाऊंगा। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जब उन लोगों ने ये बातें पेश की ना, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग अपने खेल में मशगूल हो जाओ और इसे भेड़िया आकर के ले चला जाए, या भेड़िया आकर के इसे नुकसान पहुंचा दे, इस बात का मुझे डर है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि मुझे इस बात का सख्त सदमा है, इस बात की खटक है मेरे दिल में कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में हो और इसे भेड़िया खा जाए। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि क़ालू लइन अकलहु ज़िबु व नहनु उसबा व इन्ना इज़न लखासिरून। देखिए कैसे कैसे अपने वालिद को जो है एहसास दिला रहे, कहते हैं कि अगर हम खेल में लगे रहे और हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया नुकसान पहुंचाया जाए, हमारे जो है इतने तंदुरुस्त और इतने बड़े भाइयों के होते हुए अगर यूसुफ को कोई भेड़िया नुकसान पहुंचा जाए तो फिर हम तो खसारा उठाने वालों में से है, हमारा तो कोई फायदा ही नहीं, फिर हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, लिहाजा हम उसकी हिफाजत करेंगे, आप हमारे साथ यूसुफ को भेजिए। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमअू अन यजअलूहु फी ग़ियाबतिल जुब्बि व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। फिर जब वो लोग लेके गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो उन लोगों ने एक कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया, एक कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने गैर आबाद गहरे कुएं में हजरत यूसुफ को उन लोगों ने फेंक दिया। फिर हमने यूसुफ की तरफ वही की, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं हमने यूसुफ की तरफ वही की कि तू इन्हें इस मांजरे की खबर उस हाल में देगा कि वो तुझे नहीं जान रहे होंगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, चूंकि इन लोगों ने प्लानिंग की थी, अल्लाह ने अपनी प्लानिंग पहले से करके रखी थी। तो देखिए मैं आपके सामने थोड़ा सा इन आयतों का और जो है खुलासा आपके सामने रख दूं, अभी तक जो कुछ भी मैंने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को एक औलाद अता की हजरत यूसुफ की शक्ल में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा बचपन में कि वो 11 सितारे और सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब को बताया। हजरत याकूब ने कहा कि तुम अपने भाइयों को ये ख्वाब नहीं बताना वरना वो आपसे हसद करेंगे। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत करते थे दूसरे भाइयों के मुकाबले में, दूसरे बेटों के मुकाबले में, लिहाजा बेटों में हसद पैदा हो गया। उन लोगों ने कहा कि हमारे वालिद तो सिर्फ यूसुफ को प्यार करते हैं, बिन्यामीन को प्यार करते हैं, हमें तो देखते ही नहीं है, लिहाजा हम एक काम करते हैं यूसुफ को कत्ल कर देते हैं। हम मशवरा करने लगे कि यूसुफ को कत्ल कर देते हैं। एक ने कहा कि नहीं, यूसुफ को कहीं ऐसी जगह पर छोड़ करके आ जाते हैं नामालूम जगह से जहां से वो वापस ही ना आ पाए। और तो फिर एक ने कहा कि नहीं, एक काम करो, यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि उसे एक गहरे कुएं में डाल देते हैं और बाद जो काफिले वहां से गुजरेंगे वो उसे लेते हुए गुजर जाएंगे। लिहाजा उन लोगों ने ऐसे ही किया, अपने इरादे के मुताबिक हजरत याकूब से बात की और उनको राजी किया कि कैसे भी हम यूसुफ को जो है खेलने के लिए कल साथ ले जाएंगे और उसकी हम हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब ने उनके साथ उसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन लोगों के साथ भेज दिया। जब हजरत यूसुफ को वो लोग लेकर के गए तो उन्होंने एक गहरे कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही की कि तुम परेशान ना हो, तुम इस मामले की खबर उनको ऐसी हालत में दोगे कि वो आपको नहीं पहचान रहे होंगे। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 16 में फरमाया सूरह यूसुफ, वजाउ अबाहुम ईशा यकून, कि वो ईशा के वक्त अपने वालिद के पास रोते हुए आए थे। चूंकि ये दिन में खेलने गए थे तो आते आते शाम हो गई, दूर दराज इलाके में छोड़ के आना था ना बेटे को, भाई को, लिहाजा आते आते शाम हो गई। तो ये लोग अपने वालिद के पास शाम में रोते हुए पहुंचे और कहा, क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब।
वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। ये लोग अपने वालिद के पास आकर के बहाने बनाने लगे। क्या बहाने बनाने लगे कि हमारे अब्बा जान रोते हुए, कहते ना मगरमच्छ के आंसू निकाल करके ये लोग अपने वालिद के पास आए, हजरत याकूब के पास, और कहने लगे कि अब्बा जान हम लोग यूसुफ को साथ ले गए थे, हमने उसको सामान के पास रखा और हम खेल में लग गए। उसको यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा और हम लोग जो है खेल में लग गए और हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, भेड़िया आके यूसुफ को खा करके चला गया। और उन लोगों ने ये भी कहा कि हाँ आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं, हम बिल्कुल सच्चे हैं। और क्या किया, वजअ अला कमीसिही बिदमिन कदीब, और उसके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उन लोगों ने साथ मिलाई और उस पर जो है झूठा खून लगा दिया, झूठ का खून लगा दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर, और उसको अपने वालिद को दिखाने लगे कि देखो ये कमीज है और इस पर खून भी लगा हुआ है। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि कुछ ऐसी बात है जो तुम दिल ही दिल में कर रहे हो, यानी अपने दिल ही में एक बात तुमने बना ली है, और बस सबर ही बेहतर है, और मैं तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। इन बेटों ने जो तकलीफ दी हजरत याकूब को कि हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया, उनके कपड़े के ऊपर, उनकी कमीज के ऊपर जो है झूठा खून लगा दिया, किसी जानवर को ज़बह करके उसका खून लगा दिया और हजरत याकूब के सामने पेश कर दिया और कहा कि देखो ये जो है यूसुफ की कमीज है जिसको भेड़िए ने खा लिया है। हजरत याकूब को इसका बहुत सदमा पहुंचा। हजरत याकूब ने कहा कि ये तुम्हारे दिल ही दिल में बनाई हुई बातें हैं, लिहाजा मैं सब्र करूंगा। वजात सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फादला दलवा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक वहां से, उस कुएं के पास से जिस कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वहां से एक काफिले का गुजर हुआ। फादला दलवा, तो उन लोगों ने पानी डालने के लिए जब डोल अंदर डाला और डोल बाहर खींचा तो उसको लटक करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बाहर आ गए। हाँ, उन लोगों ने पानी खींचने के लिए, उस काफिले वालों ने डोल पानी के अंदर डाला, कुएं के अंदर डाला और बाहर खींचा तो उतने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल को लटक करके आ गए। क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम, लिहाजा वो लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके खुश हो गए कि हाँ ये लड़का आ गया, यानी उस डोल से लड़का निकला तो ये लोग देख करके खुश हो गए। व असर्रुहु बिदाअ वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, और उसको माले तिजारत उन लोगों ने समझ लिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और वो खुश हो गए कि क्योंकि देखिए वहाँ उस जमाने में ना गुलामों का दौर था, लिहाजा अगर किसी को ऐसा कोई शख्स मिल जाता तो वो खुश हो जाता कि चलो मेरे को एक गुलाम मिल गया। लिहाजा वो लोग भी खुश हो गए कि एक लड़का मिल गया, चलो इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, ले जाकर के इसको बाजार में बेच देंगे। लिहाजा उन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले लिया। व शरऊहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा व कानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, और फिर वो लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से मिस्र ले गए, और वहां ले जाने के बाद उन लोगों ने मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ही कम कीमत पर हजरत यूसुफ को बेच दिया। हजरत यूसुफ को बहुत ही कम कीमत पर बेच दिया और वो यूसुफ के बारे में बहुत ही बेरग़बत थे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इसको जिसने खरीदा ना मिस्र वालों में से, उसने अपनी बीवी से कहा, असल में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हुआ क्या था ना कि ये लोग जब काफिले वालों ने हजरत यूसुफ को ले लिया, पकड़ लिया, तो इसे ले जाकर के उन्होंने मिस्र के, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने मिस्र के एक बाजार में बेचा। और पता है मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ को खरीदने वाला कौन था? जो मिस्र का जो बादशाह, वजीर खजाना जो था ना, वो था बादशाह का जो वजीर था, वजीर खजाना जो था, उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और ले जाकर के अपनी बीवी को दिया और कहा कि इसको अपनी हिफाजत में रखो, इसको पाल पोस करके बड़ा करो, मुमकिन है कि यह हमें कोई फायदा पहुंचा दे, या इसको हम अपना बेटा बना ले, और उसने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम को मिस्र में अब जमा दिया, और ख्वाब की ताबीर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाई। वलम्मा बलगा शुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ को कुव्वत फैसला और इल्म दिया। वकज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और नेकोकारों को हम इसी तरह बदला देते हैं। अब यहाँ से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान और तंदुरुस्त हो गए, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आप हसीन और जमील थे, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका तज़किरा खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी खूबसूरती का तज़किरा किया। वो आगे इंशाअल्लाह मैं उसको जिक्र करूंगा, लेकिन आप समझिए कि भाइयों ने कुएं में डाल दिया, कुएं से उन काफिले वालों ने निकाला, ले जाकर के मिस्र में बेचा। मिस्र में जो जिसने उनको खरीदा हजरत यूसुफ को, वो मिस्र का वजीर खजाना था।
खजाने का वजीर था, उसने ले जाकर के अपनी बीवी को दिया कि यूसुफ को पाल पोस करके बड़ा करो इस शख्स को, हो सकता है ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसको अपना बेटा बना ले। लिहाजा उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हीं के घर में रहे, उन्हीं के घर में पले बड़े, हत्ता के जवान हो गए और मजबूत हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इल्म और नबूवत अता की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थे और अजीज मिस्र की बीवी जिसने उनको पाल पोस करके बड़ा किया था वो उन पर फरेफ्ता हो गई। उसका दिल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आ गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने बुराई की तरफ बुलाने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 23 में फरमाया, वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अब्वाब वक़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वा इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। उस औरत ने जिसके घर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कहने लगी लो आ जाओ, दरवाजा उसने बंद किया उस औरत ने और कहने लगा लो आ जाओ यूसुफ हमारे पास, यानी बदकारी के लिए उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। हजरत यूसुफ ने कहा कि वो मेरा रब है, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छे तरीके से रखा है, मैं बेइंसाफी करने वालों को भला नहीं समझता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस खातून से ये कहा ना कि देखो अजीज मिस्र, वजीर मिस्र ने मुझे इतना अच्छे अंदाज में रखा है, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ ये बदकारी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ इस मामले में। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों को इस काम में पीछे ले लिया, इस मामले में अपने कदमों को हजरत यूसुफ ने पीछे ले लिया। आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 24 में फरमाया, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बी कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिना अल मुख़लसीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उस औरत ने हजरत यूसुफ का क़स्द किया, लेकिन हजरत यूसुफ उनका कस्द करते अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो दलील पर ना होते, यानी हजरत यूसुफ उसका कस्द करते अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ना बचाता। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचाया। अल्लाह ताला ने कहा कि हजरत यूसुफ भी उसका कस्द करते अगर वो अपने रब की तरफ से दलील ना देखते, यूं ही इस वास्ते कि हमने उसे बुराई और बेहयाई से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दूर कर दिया, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वस्तबक़ल बाब वक़द्दत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मामला ये हुआ ना कि जब उस औरत ने हजरत यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आओ यूसुफ अब हम बदकारी करें, हजरत यूसुफ ने कहा माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, जो है उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रखा है। और फिर उस औरत ने हजरत यूसुफ का कस्द किया, उनकी तरफ जाने का कस्द किया, हजरत यूसुफ उससे भाग रहे थे, दूर हट रहे थे। लिहाजा हजरत यूसुफ और वो दोनों दरवाजे की तरफ भाग रहे थे, हजरत यूसुफ आगे आगे वो पीछे पीछे। हजरत यूसुफ उससे बचने के लिए भाग रहे थे और वो हजरत यूसुफ को पकड़ने के लिए भाग रही थी। दोनों भाग रहे थे, हजरत यूसुफ आगे आगे थे, वो औरत पीछे पीछे थी। जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे कि उस औरत के शौहर ने देख लिया, यानी उस वजीर खजाना ने उन दोनों को देख लिया। जैसे ही वजीर खजाना ने उन दोनों को देख लिया तो औरत ने अपना विक्टिम कार्ड निकाला और कहा कि उस वजीर से कहा, अपने शौहर से कहा कि अगर कोई तुम्हारी बीवी के साथ बुराई करने का इरादा करे तो उसका तो ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल है, सिर्फ और सिर्फ कैद खाना है, लिहाजा यूसुफ को कैद खाने में डाल दो। यानी पूरा का पूरा इल्जाम उस औरत ने उठा करके हजरत यूसुफ पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके शौहर ने उसको देख लिया यूसुफ के पीछे भागते हुए। लिहाजा वो औरत ने पूरा का पूरा इल्जाम हजरत यूसुफ पर डाल दिया। जब उसने हजरत यूसुफ पर वो इल्जाम डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और चूंकि वो पीछे पीछे भाग रही थी ना, तो हजरत यूसुफ का कमीज उसने फाड़ दी। पीछे से भागते भागते हजरत यूसुफ उस औरत से बचने के लिए भाग रहे थे, वो औरत हजरत यूसुफ को पकड़ने के लिए भाग रही थी। लिहाजा वो भागते भागते उसने हजरत यूसुफ का कमीज पकड़ा और कमीज फट गया, कुर्ता हजरत यूसुफ का फट गया और वो दो लोग दरवाजे के पास पहुंचे कि उसके शौहर ने देख लिया और उस औरत ने पूरा का पूरा इल्जाम हजरत यूसुफ पर डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीज़ुहु क़ुद्द मिन क़बल फसद्दक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। तो उस औरत ने जब पूरा का पूरा इल्जाम हजरत यूसुफ पर डाल दिया ना, तो हजरत यूसुफ ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये औरत मुझे फुसला रही थी, ये औरत मुझे बहका रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे बारात का ऐलान करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने कहा कि नहीं, यूसुफ ने ही पहल की और यूसुफ ने ही। अब मांजरा जब उलझ गया ना कि किसने पहल की, किसने किसको बुराई की तरफ बुलाया, तो उन्हीं के कबीले, उसी औरत के कबीले से एक शख्स उठा और उसने ये बात कही कि देखो, एक तरीका है जानने का कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर कुर्ता आगे से फटा है, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है।
अगर उसने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है। और फरमाया व इनका न कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिन सादिकीन, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो पीछे से फटा होने की सूरत में यूसुफ सच्चा है और वो औरत झूठी है। अब आप देखें कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से नऊज़ुबिल्लाह आगे बढ़ते इस काम के लिए, तो आप सामने का हिस्सा लेकर के जाते ना, और वो अपना बचाव करती तो सामने से कुर्ता फटता। लेकिन हजरत यूसुफ चूंकि उससे बच करके भाग रहे थे, लिहाजा वो पीछे भाग रही थी हजरत यूसुफ आगे भाग रहे थे, तो उसने जब कुर्ता खींचा तो पीछे से कुर्ता फट गया। अब जब कुर्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। बादशाह समझ गया, वजीर खजाना समझ गया कि यह औरत झूठ बोल रही है, लिहाजा उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा यूसुफ आरिदन हादा, यूसुफ इस मामले को अभी जाने दो, इसको खत्म करो, इस मामले को जो है रफा दफा करो और खामोश रहो इस मामले में। और उस औरत से कहा वस्तगफिरी ली ज़म्बिकी इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन, और उस औरत से कहा कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार कर, अपने गुनाहों की माफी तलब कर, क्योंकि तू गलती पर है, तूने गलत किया है, हाँ तुझसे गलती हुई है, इसलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गलती की माफी मांग। उस औरत को उसके शौहर ने ये बात कह करके मामले को यहीं रफा दफा कर दिया, मामले को यहाँ पर साइलेंट कर दिया, खामोश कर दिया मामले को। कि ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए आपके सामने थोड़ी सी बात मैं वजाहत कर दूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस औरत ने, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए और नौजवान हुए, खूबसूरत हसीन और जमील थे, तो वो औरत हजरत यूसुफ पर फरिश्ता हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ बुलाने के लिए उसने दरवाजा बंद किया। हजरत यूसुफ ने कहा माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं इस चीज़ की तरफ नहीं आ सकता। तो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने का कस्द किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे बच करके भाग रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे थे, वो पीछे पीछे थी। पीछे से पकड़ने के चक्कर में उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता फाड़ दिया। यूसुफ दोनों दरवाजे के पास पहुंचे कि सामने उसका शौहर आ गया, उस औरत का, वजीर खजाना। और उस औरत ने कहा कि ये यूसुफ मुझसे जो है गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, लिहाजा इसको कैद खाने में डाल दो। हजरत यूसुफ ने कहा कि नहीं, ये औरत मुझे फुसला रही थी। अब जब मामला उलझ गया तो उनके ही कबीले से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि अगर कुर्ता सामने से फटा है तो औरत सच्ची है, यूसुफ झूठे हैं, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे, औरत झूठी है। जब देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। बादशाह समझ गया, वजीर खजाना, और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अब जो हो गया हो गया, इस मामले को रफा दफा करो, खामोश रहो। और उस औरत से कहा कि तुम तौबा करो क्योंकि तुम गलती पर हो। अब जब ये मामला खत्म हो गया ना, तो मामला कैसे होता है ना कि जब कोई चीज हो जाती है तो जब तक वो सब में फैल ना जाए ना, तो वो चीज रफा दफा नहीं होती है। अब ये जो हजरत यूसुफ का और उस खातून का जो वाकया था, तारीख में इस खातून का नाम जुलेखा के नाम से आया है, लेकिन किताब और सुन्नत में कहीं भी ये नाम मरवी नहीं है। आप याद रखें, लोगों ने यानी जो नाम मशहूर है जुलेखा और यूसुफ का किस्सा, तो नाम तो इसका जुलेखा आया है, लेकिन किताब और सुन्नत में कहीं भी इसका नाम ये जुलेखा नहीं आया है। लिहाजा वो खातून जो थी अजीज मिस्र की बीवी, उसका ये जो मामला था अपने गुलाम पर फरेफ्ता होना, चूंकि हजरत यूसुफ तो उसके गुलामी थे, एक एतबार से खरीदा था उसने हजरत यूसुफ को, लिहाजा उसके गुलाम पर, अपने गुलाम पर उसका फरेफ्ता होना ये पूरे शहर में मशहूर हो गया। होता है ना, कोई एक चीज हो गई, किसी के घर से निकली तो वो पूरे गांव भर में फैल जाती है। लिहाजा वो भी मिस्र की गलियों में ये बात गूंजने लगी, और वहां के जो दूसरे रुआसा की बीवी थी, शहर की जो दूसरी खवातीन थी, वो इस पर मलामत करने लगी कि कैसी औरत है, अपने गुलाम के ऊपर फरेफ्ता हो गई, गुलाम पर मरमिटी है, गुलाम के पीछे पड़ी है, उसके साथ बदकारी करने के पीछे पड़ी है। तो ये मशवरा शहर में जो है ये बात मशहूर हो गई, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र कुरान मजीद में इन अल्फाजों में किया, आयत नंबर 30 में, वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतिल अज़ीज़ तुराबिदु फताहा अन नफ्सी, के अज़ीज़ मिस्र की बीवी जो है अपने गुलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। क़द शग़फ़हा हुब्बा, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी है, मोहब्बत में हद से बढ़ गई है। हाँ, इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हालांकि हमारे ख्याल में वो तो सरीह गुमराही में है। देखिए यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये किस मोहब्बत, ये कौन सी मोहब्बत थी? यूसुफ, जुलेखा, ये औरत, ये खातून जो जो अजीज मिस्र की बीवी थी, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करती थी, इसको हमारी ज़बान में क्या कहते हैं? इश्क। और अरबी ज़बान में भी लफ्ज़ इश्क, ये जो है ना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है इश्क, और यहाँ पर लफ्ज़ इश्क का इस्तेमाल हो सकता था, हालांकि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क़द शग़फ़हा हुब्बा कहा। इसीलिए भी बाद अहले इल्म ने ये बात इससे इस्तिदलाल किया है कि ये लफ्ज़ इश्क ये अच्छा नहीं है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आशिक़ रसूल लोग अपने आप को कहते हैं, और जो है मोहब्बत रसूल की जगह वो आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं। कोई इंसान कहता है मैं अपनी माँ से इश्क करता हूँ, मैं अपनी बहन से इश्क करता हूँ, नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लफ्ज़ ही बदनाम ज़माना लफ्ज़ है। तो इसको जब इंसान अपनी माँ बाप, अपने
बहन के साथ यूज नहीं कर सकता तो वो कैसे जो है अल्लाह के नबी के साथ यूज कर सकता है। लिहाजा मोहब्बत का लफ्ज उमूमन इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़द शग़फ़हा हुब्बा, कि वो मोहब्बत में बहुत ज्यादा बढ़ गई। और फिर जब इस खातून को, अजीज मिस्र की बीवी को, जब शहर की औरतों का पता चला कि शहर में इस तरह की बात घूम रही है औरतों के दरमियान में, तो उसने एक इरादा किया। उसने अपना खुराफाती दिमाग लड़ाया और उसने क्या किया, तमाम खवातीन को जो इस तरह की बातें कर रही थी ना, उन तमाम को अपने घर खाने पर बुलाया, अपने घर दावत पर बुलाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि खाली वहां से गुजर जाना इन औरतों के सामने से। और हुआ भी ऐसे ही। उस औरत ने क्या किया, तमाम औरतों को शहर की अपने घर पर दावत दी और खाने के लिए बुलाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा वक़ालत खुरुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि जब वो खाना खा रही होंगी ना तो उनके सामने से गुजर जाना, और उनको खाना खाते वक्त उस औरत ने हर एक के हाथ में एक एक छुरी दे दी और कहा कि तुम लोग खाना खाओ। वो लोग छुरी से खाना खा रहे थे, छुरी हाथ में थी उन लोगों के। हजरत यूसुफ का गुजर जैसे ही सामने से होता है, वह औरतें कहने लगती है वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। उन लोगों ने अपनी उंगलियां काट ली उन औरतों ने और कहा कि अल्लाहु अकबर, वक़ुलना मा हाशा, ये कैसा इंसान है, ये इंसान नजर नहीं आता, ये तो कोई फरिश्ता है, ये तो कोई फरिश्ता है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, लगता है ये तो कोई फरिश्ता है। उन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देख करके वो लोग हैरान हो गई, वो लोग परेशान हो गई और उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, उनको एहसास भी नहीं हुआ और कहा कि ये तो कोई फरिश्ता नजर आता है, इंसान नजर नहीं आता। लिहाजा इतने खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, इनकी खूबसूरती की गवाही खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। वो रिवायत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज वाली रिवायत है, जो सही मुस्लिम हदीस नंबर 162 हदीस नंबर 162 हदीस नंबर है सही मुस्लिम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सुम्मा अरज बी इला समाइ सालिसती, कि जब मैं और जिब्राइल जो है तीसरे आसमान की तरफ पहुंचे, फ़क़ीला मन अंता, तो हमसे पूछा गया, हजरत जिब्राइल से पूछा गया आप कौन है। हजरत जिब्राइल ने कहा मैं जिब्राइल हूँ। और फिर पूछा गया वमन माका, कौन आपके साथ है। क़ाला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर हजरत जिब्राइल से पूछा गया कि आपको बुलाया गया था, उन्होंने कहा हाँ बुलाया गया था। तो फिर वो कहते हैं फुतिहा लना, तो वो बाब, वो दरवाजा अल्लाह के नबी और हजरत जिब्राइल के लिए खोला गया। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इज़ा अना बियूसुफ, तो मैंने वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मैंने देखा तो अल्लाह के नबी कहते हैं इज़ा हुवा क़द उतिया शत्रल हुस्न, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधी खूबसूरती, दुनिया की आधी खूबसूरती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी गई थी। फरहबा व दआ ली बिखैर, फिर उन्होंने मुझे मरहबा कहा, मुझे खुशामदीद कहा हजरत यूसुफ ने और मेरे लिए दुआए खैर की। यानी अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया की आधी खूबसूरती दी गई थी। सोचिए कितने खूबसूरत होंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर। तो वो जो मिस्र की खवातीन थी, जो औरतें थी, उन लोगों ने हजरत यूसुफ को हुस्न को देख करके वो लोग हैरान और शजदर रह गई, उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली और उनको पता भी नहीं चला। फिर इस खातून ने, अजीज मिस्र की बीवी ने उन लोगों से कहा क़ालत फ़ज़ालिकुन्न अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, उन लोगों से कहा देख रही हो यही वो शख्स है जिसके ताल्लुक से तुम लोग मुझे मलामत कर रही थी, तुम भी उसके हुस्न को देख करके हैरान हो गई ना, मैं भी इसी तरह उसके हुस्न में खो गई थी। लिहाजा उस खातून ने उन लोगों के सामने ये बात कही कि देखो यही वो था जिसकी वजह से तुम लोग मुझे मलामत कर रही थी और जिसकी तरफ मैंने बढ़ने का कस्द किया था, इरादा किया था। उस औरत ने, अजीज मिस्र की बीवी ने उन खवातीन से कहा कि अगर मैं जो चाह रही हूँ, अगर इसने वो काम मेरे साथ नहीं किया, यानी मैंने जो इसके साथ इरादा किया है वो इरादा अगर इसने पूरा नहीं किया तो ये कैद में जरूर जाएगा। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात पता चली तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरह यूसुफ आयत नंबर 33, क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना अकुम मिनल जाहिलीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कैद खाना बेहतर है इस चीज से जिसकी तरफ ये औरत बुला रही है, जिस बुराई की तरफ ये औरत मुझे बुला रही है, इससे बेहतर तो मेरा कैद खाने में कैद हो जाना है। लिहाजा हजरत यूसुफ ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरा कैद खाने में कैद हो जाना बेहतर है इस खातून के उस अमल से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है। लिहाजा अगर तूने इसका जो है इसका फन
आगे अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अगर तूने इसका फरेब मुझसे दूर नहीं किया तो मैं बिल्कुल नादानों में और जाहिलों में से हो जाऊंगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों के दाव पेच फेर दिए, यकीनन वो सुनने वाला और जानने वाला। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए कैद खाना बेहतर है इस खातून के अमल से, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कैद खाने में जाएंगे बगैर किसी गलती के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी गलती के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अभी कैद खाने में डाला जाएगा और उसके बाद फिर किस तरह से वो ख्वाब की ताबीर करके कैद खाने से बाहर आएंगे इंशाअल्लाह इसकी तफसील हम लोग अगले दर्स में देखेंगे। चूंकि हमारा वक्त हो चुका है नाज़रीन, कुछ बातें मैंने आपके सामने जो आज रखी उसका खुलासा मैं आपके सामने मुख्तसरन पेश कर दूं। सबसे पहले हमने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा आपके सामने रखा और हजरत इसहाक के ताल्लुक से उनकी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जो औलाद अता की, दो जुड़वा बेटे अल्लाह ताला ने उनको दिए, हजरत इसहाक को ईस और याकूब। हजरत याकूब का एक नाम बनी इसराइल भी था और उनका बाद में कहा कि इसराइल उनका लक़ब था, लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ पैदा हुए और फिर ये नस्ल चली। लिहाजा और फिर मैंने हजरत इसहाक और याकूब के ताल्लुक से जो कुरान मजीद की आयत थी वो मैंने आपके सामने रखा। फिर हजरत याकूब का तज़किरा मैंने आपके सामने रखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। हजरत याकूब ने दो औरतों से निकाह किया, एक लैया और दूसरा राहिल, और एक औरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत याकूब को 10 बेटे अता किए, एक औरत से 2 बेटे अता किए और 2 बेटे जिसको अता किए वो हजरत यूसुफ और बिन्यामीन थे और 10 भाई दूसरे हजरत यूसुफ के थे। फिर यहाँ से हमने हजरत यूसुफ का तज़किरा शुरू किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन में एक ख्वाब दिखाया जिसमें उन्होंने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब को अपने वालिद हजरत याकूब को बताया और इस ख्वाब की ताबीर इंशाअल्लाह आगे आएगी जब मैं आपके सामने रखूंगा। इस वाक़े के इख्तिताम के वक्त, एंड के वक्त इसकी ताबीर आएगी इंशाअल्लाह। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब को अपने वालिद से बयान किया। वालिद ने कहा कि भाइयों के सामने इसे बयान न करना वरना वो हसद करेंगे और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। लिहाजा भाइयों ने ये देखा कि यूसुफ से उनके वालिद ज्यादा मोहब्बत करते हैं हजरत याकूब, लिहाजा भाइयों को हसद पैदा हुआ। उन लोगों ने मशवरा किया कि यूसुफ को हमारे और वालिद के दरमियान में से हटा देते हैं। लिहाजा उन लोगों ने मशवरा किया, एक ने कहा कत्ल कर देते, एक ने कहा नहीं कत्ल नहीं करते हैं बल्कि इनको कहीं ऐसे नामालूम मकाम पर छोड़ करके आ जाते हैं जहां से ये वापस ही ना आ पाए। और फिर एक भाई ने कहा कि नहीं एक काम करो, कत्ल ना करो, इसको एक ऐसे अंधेरे कुएं में छोड़ दो जहां से कोई काफिला गुजरेगा तो उसे लेता हुआ गुजर जाएगा। लिहाजा उनको ले जाकर के इन लोगों ने प्लान के मुताबिक अपने वालिद को किसी तरह राजी किया। हजरत यूसुफ को ले जाने के लिए हजरत याकूब को राजी कर लिया और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो लोग दूर दराज के इलाके में ले गए। वहां एक कुएं में इन्होंने हजरत यूसुफ को डाल दिया और वो रोते हुए अपने वालिद के पास रात के वक्त आए और वालिद से कहा कि यूसुफ को हम लोगों ने सामान के पास छोड़ा था, हम लोग खेल में मशगूल थे और यूसुफ को भेड़िए ने आके खा लिया और एक जानवर ज़बह करके उसका खून हजरत यूसुफ के कुर्ते पे लगा दिया और अपने वालिद को वो कुर्ता पेश कर दिया। लिहाजा वालिद ने कहा कि मेरे पास तो सब्र करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं सब्र करूंगा और ये तुम्हारे दिल की बातें हैं। लिहाजा हजरत यूसुफ वहाँ कुएं में थे, वहाँ से एक काफिले का गुजर हुआ तो उन लोगों ने हजरत यूसुफ उन लोगों ने पानी पीने के लिए डोल कुएं में डाला तो उस डोल से लटकते हुए हजरत यूसुफ भी बाहर आ गए। वो लोग देख करके खुश हो गए कि चलो कोई माले तिजारत मिल गया है। ले जाकर के उन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेच दिया। मिस्र के बाजार में एक शख्स ने बहुत ही कम कीमत पर हजरत यूसुफ को खरीद लिया जो अजीज मिस्र था, मिस्र का वजीर खजाना था जिसको अजीज मिस्र कहा जाता था, उसने खरीद लिया और अपनी बीवी के पास उसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, कहा कि इसको अपने पास रख करके नौजवान करो, बड़ा करो, ये हमें फायदा पहुंचाएगा या ये जो इसको जो है हम अपना बेटा बना लेंगे। लिहाजा वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी के घर में रहते हैं, वहीं परवान चढ़ते हैं और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म और नबूवत अता करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी में बहुत खूबसूरत थे, हद दर्जे खूबसूरत थे। लिहाजा वो अजीज मिस्र की बीवी जब हजरत यूसुफ को देखती है तो उसकी तरफ हजरत यूसुफ की तरफ उसका दिल आ जाता है और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरवाजा बंद करके कमरे में बदकारी की तरफ बुलाती है। हजरत यूसुफ कहते हैं माअद अल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ और उसने मुझे अच्छी जगह रखा है, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ बदकारी नहीं कर सकता। और वो औरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे भागने की कोशिश करते हैं। हजरत यूसुफ आगे आगे भागते हैं, वो पीछे पीछे भाग रही होती है, दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। वो औरत हजरत यूसुफ को पकड़ने के चक्कर में उनका कुर्ता पकड़ लेती है, कुर्ता पीछे से फट जाता है। दरवाजा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं दोनों भी, उसका शौहर उस खातून का शौहर यानी अजीज
मिस्र वहां दरवाजे के पास मौजूद होता है, वो दोनों को देख लेता है। वो औरत फौरन जो है पूरा का पूरा इल्जाम हजरत यूसुफ पर डाल देती है, कहती है कि यूसुफ मेरे से बदकारी करने का इरादा कर रहा था, लिहाजा जो आपकी बीवी के साथ बदकारी करेगा उसे कैद खाने में चले जाना चाहिए। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, ये औरत मुझे बुराई की तरफ बुला रही थी। जब दोनों में मामला खलत मलत हो जाता है तो एक शख्स उसी औरत के कबीले से खड़ा होता है और कहता है कि एक रास्ता है चेक करने का कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। वो ये कहता है कि देखो, अगर कुर्ता अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो समझना यूसुफ झूठा है, वो औरत सच्ची है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है तो समझना यूसुफ सच्चा है, वो औरत झूठी है। लिहाजा जब कुर्ता चेक किया जाता है, पीछे से फटा होता है, बादशाह समझ जाता है, अजीज मिस्र समझ जाता है, वजीर खजाना, और वो हजरत यूसुफ से कहता है कि अब जो हुआ यूसुफ इसको जाने दो, इसको जो है रफा दफा करो इस मामले को, और अपनी बीवी से कहता है वस्तगफिरी लिज़ंबी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी तलब कर, इसलिए कि इन्नकी कुंती मिनल खातिईन, इसलिए कि तू गुनहगार है, तूने गलती की है। और फिर मामला ये खामोश हो जाता है। लेकिन मामला ऐसे ही खामोश नहीं होता है, बल्कि मिस्र में इसके चर्चे होने लगते हैं इस खातून के, कि इसने अपने जो है गुलाम के साथ इसी तरह का बदकारी का इरादा किया है। लिहाजा ये जब मिस्र की खवातीन में पहुंचता है और इसको पता चलता है अजीज मिस्र की बीवी को, तो ये मिस्र वाली खवातीन को, जिनके दरमियान में ये बातें होती हैं, उसको अपने घर बुलाती है, जो मलामत कर रही होती है कि कैसी है, अपने गुलाम पर फरेफ्ता हो गई, गुलाम के पीछे पड़ी है। तो ये अपने घर उन औरतों को बुलाती है और हजरत दावत पर बुला करके उनके हाथ में छुरियां देती है और हजरत यूसुफ को कहती है वहां से गुजर जाओ। जब हजरत यूसुफ वहां से गुजरते हैं, वो खवातीन हजरत यूसुफ को देखती है तो अपनी उंगलियां काट लेती है और कहती है वकुल्ना मा हाशा लिल्लाहि हादा बशरा इन हादा इल्ला मशलुकुन करीम, ये कैसा इंसान, ये इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता नजर आता है हजरत यूसुफ की खूबसूरती को देख करके। लिहाजा वो अजीज मिस्र की बीवी उन औरतों के सामने कहती है देखो यही वो है जिसके ताल्लुक से तुम लोग मुझे मलामत कर रही थी, तुम भी हैरान हो गई ना। लिहाजा वो ये कहती है कि अगर मैंने जिस चीज का इरादा इससे किया है, अगर इसने वो नहीं किया तो मैं उसे कैद खाने में डलवा दूंगी। हजरत यूसुफ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ये औरत जिसकी चीज की तरफ मुझे बुला रही है इससे बेहतर तो कैद खाना है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत यूसुफ की दुआ को कबूल कर लेते हैं और हजरत यूसुफ को उससे बचा लेते हैं। इंशाअल्लाह इसके आगे का तज़किरा आगे के दुरूस में इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।